Hello everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. In today's videos, as always, we are going to discuss 5 words that have been taken from the Hindu latest newspaper so that these words may help you when you solve the newspaper article or any passage that has been incorporated in your CLAT examination. As I previously told you that the importance of words cannot be denied, cannot be neglected, because let's say you are solving an exercise or an extract. What happens? You get some word. If you know the meaning, you can comprehend the passage as it is. But let's say you do not know the word or you do not have good command over vocabulary, so you will try to think beyond the box. You will trying to go beyond the box, and that may create a problem. So that is why we want you to understand a passage very clearly as it has been mentioned in the passage itself. All right, so in the pursuance of same let us discuss today's words. But before we proceed further, let me tell you the admissions are open for 1 year and for 2-year programs. For more inquiry, you can visit to www.lawentranceindia.com. You can also call us at 9971444054. Our representative will be more than happy to help you, assist you, guide you, and counsel you with whatever you want to know about CLAT, AILET, be it any law entrance examination. All right, so let us start today's word. The first word in the list is pragmatic. So pragmatic sounds something like old, but it is not that. Okay, so pragmatic means concerning on practical results and facts instead of speculation or opinion, something which is practical. So अभी देखो प्रैक्टिकल का जो मतलब है जरूरी नहीं है कि वो एकदम वैसा ही बैठे जैसा आप प्रैक्टिकल को समझते हो. सो लेट अस अंडरस्टैंड pragmatic with the help of some sentence. So first sentence is the scientist had a pragmatic approach. कैसा approach? Pragmatic approach to deal with water crisis. So now try to understand what is the meaning of pragmatic. It is an adjective. So ये बात आ रहा है एक ऐसे अप्रोच के बारे में जो pragmatic हो. कुछ लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जब तक रिसर्च नहीं कर लेते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, सो pragmatic यहाँ पे है कंसंट्रेटिंग ऑन प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड फैक्ट इंस्टेड ऑफ स्पेक्यूलेशन और ओपिनियन. मतलब कहीं सुनी बातों पे नहीं, बल्कि एक रिसर्च के द्वारा. तो साइंस का काम ही यही है, रिसर्च करना फिर बिलीव करना. तो जो साइंटिस्ट है, जाहिर सी बात है, वो भी प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएगा, ना कि एक कोई स्पेक्युलेटिव अप्रोच अपनाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ यू आर ट्रेवलिंग अ ग्रेट डिस्टेंस द प्रैग्मेटिक अप्रोच इज टू टेक प्लेन. सो रिसर्च्ड, ठीक है, रिसर्च्ड और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच इज टू टेक अ प्लेन. अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, ट्रेन में समय बीतता है ज़्यादा, सो प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या है, एक रिसर्च्ड अप्रोच क्या है कि आप प्लेन से सफ़र करें. The synonyms are matter of fact or realistic, and the antonyms are impractical or unrealistic. The next word in the list is adversary. Again, adversary sounds like something vipada and all, but no, it is adversary. It means who is your opponent, the person who is your opponent. So adversary means one's opponent in a context. कोई result हो, कोई conflict हो, कोई dispute हो, उसमें आपका जो भी opponent है, he will be called adversary, and this is noun. So दोनों ही शब्द जो अभी हमने डिस्कस किया, pragmatic, they look like different. तो अगर आपने speculate किया, अगर आपने assumption या presumption लगाया, तो आप उसका कुछ और भी meaning लगा सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम चाहते हैं आप वर्ड्स को अच्छे से लर्न करें और सेंटेंस के साथ समझें. सो एडवर्सरी का मतलब होता है आपका जो अपोनेंट या प्रतिद्वंदी है. एग्जाम्पल, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ देन यू आर योर ओन वर्स्ट एडवर्सरी. मतलब अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो आप खुद के लिए ही संकट है या प्रतिद्वंदी है. नेक्स्ट, आई विल डिस्ट्रॉय माई एडवर्सरी ड्यूरिंग आवर बैटल. सो हमारा जो इस बंदे का जो भी एडवर्सरी है, मतलब अपोनेंट है, वो उसे डिस्ट्रॉय करेगा. सो एनिमी, द सिनोनिम इज एनिमी और राइवल, एंड द एंटोनिम्स आर एलाई और सपोर्टर. द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज सिनिसिज्म. बड़े ध्यान से समझना सिनिकल क्या होता है, सिनिसिज्म क्या होता है. दिस इज वन ऑफ द टोन्स ऑल्सो. तो ये दिस इज वेरी easy word, and
but the thing is people it is not in use, so that's why people neglect it. And it is also one of the tones in passage, so it is very very important you to learn this word. So cynicism means an inclination to believe that people are motivated purely by self interest, ठीक है. So spectacle tone होता है, cynical tone होता है, ठीक है. So ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो ये मानता है या जो ये बिलीव करता है कि जो दुनिया में लोग हैं वो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, उन्हें हम सिनिकल कहते हैं और स्पेक्टिकल कहते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर फील्ड विद बिटरनेस, कड़वाहट से भरकर, एंड सिनिसिज्म. द जेडेड वुमन हैज़ अ हार्ड टाइम बिलीविंग गुड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. मतलब कोई लेडी है जिसके जीवन में हो सकता है हार्श इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो बिलीव ही नहीं करती कि गुड, अच्छाई जो है वो भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज द कैरेक्टर टॉक्स सिनिकली अबाउट लव. तो कोई फिल्म है, कोई ड्रामा है, उसमें जो कैरेक्टर है वो लव को भी सिनिकली बोल रहा है. मतलब सिनिकली अबाउट लव मीन्स लव भी वही सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, इसलिए उन्हें ऐसा, ये कैरेक्टर ऐसा मानता है. सो नाउ यू अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ सिनिसिज्म, सिनिकल, स्पेक्टिकल. ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी काम कोई करता है तो अपने फायदे के लिए करता है. सो सिनोनिम इज डाउट एंड डिस्ट्रस्ट, and antonyms are optimism and belief. The next word in the list is quite easy, it's glare. Glare can be synonymously used with stare. So घूरना कुल मिलाकर, stare in an angry or fierce way. Glare करना, गुस्से में देखना. So the teacher glared at him as he walked late. He was glaring at me. So this is quite easy. Glower, frown, भौवें चढ़ाकर देखना. स्माइल, ग्रिन मतलब जोर से हंसना. सो ग्लेयर मीन्स गुस्से में देखना. द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज क्रिपल. अभी क्रिपल को समझो. क्रिपल वर्ब की तरह अलग काम करता है, नाउन की तरह अलग काम करता है. सो व्हेन इट इज रेफर्ड टू एनी पर्सन हु आर स्पेशली एबल्ड, सो दैट इज क्रिपल्ड एज अ नाउन. बट वर्ब में जब कोई सिचुएशन ही लड़खड़ाने लगे या वीक हो जाए, वहाँ पे आप क्रिपल बोलते हैं, ठीक है. जैसे कॉज सीवियर एंड डिसेबलिंग डैमेज टू. तो वो इकोनॉमी हो सकती है, वो पर्सन का कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. डिप्राइव ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, मतलब नॉर्मल जो फंक्शन ना कर पाए उसे क्रिपल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग कंट्रीज आर crippled by their debts. मतलब जो विकासशील देश हैं जो अभी डेवलपिंग मोड में है, वो crippled है. मतलब हालांकि ये टर्म जो है cripple अपंग बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? cripple की जो लड़खड़ा रही है वो क्यों? क्योंकि कर्ज में होती है डेवलपिंग कंट्री. Another example is it is wrong to make fun of a cripple. अब यहाँ पे a cripple है, it means it is a noun here. So noun का भी example यहाँ दे दिया और यहाँ पे आपके पास verb का example है. So it is very very important to you to know how they function. When a word functions as a noun, it means differently, and when a word functions as a verb, it means differently. Okay. Synonyms are destroy or wipe out, and antonyms are boost or encourage. So I hope you understood all the words discussed in the video. Let us take a look on whatever words we discussed. The first word in the list was pragmatic. Pragmatic means एक रिसर्च पे बेस बिलीव, न कि केवल बस कहीं सुनी बातों पे बिलीव कर लेना. लाइक प्रीवियसली पीपल यूज टू बिलीव कि जो सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण आता है वो इसलिए आता है क्योंकि कोई शैतान आता है वो चंद्रमा को निकल जाता है. दैट वाज नॉट अ प्रैग्मेटिक बिलीव, राइट. सो उसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च करा, उन्होंने पाया कि नहीं, जब सूरज चांद के आगे आ जाता है, चांद सूरज के आगे आता है, तो ये दोनों ही इंसिडेंट्स रिस्पेक्टिवली होते हैं. सो कोई भी चीज़ जब आप रिसर्च करके बिलीव करते हो, दैट इज़ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ डूइंग. आई होप दिस वर्ड इज क्लियर नाउ. एडवर्सरी मतलब आपका प्रतिद्वंदी. आपका प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? कोई भी, आप खुद भी. कब? जब आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं और जब आप कॉम्पिटिशन में भाग लेते हो वहाँ पे.
थर्ड वर्ड इन द लिस्ट वॉज सिनेसिज्म। सिनेसिज्म ने बताया कि जब कोई व्यक्ति ये बिलीव करता है कि सामने वाला या दुनिया का हर व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है और पूरा का पूरा मोटिवेटेड है सेल्फ इंटरेस्ट से, उसको किसी से नहीं मतलब है, दैट इज सिनेसिज्म। ग्लेयर मतलब घूरना, देखना। द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज क्रिपल। क्रिपल मीन्स टू मतलब लड़खड़ाना, लंगड़ाना। वो कोई सिचुएशन हो सकता है एंड वो कोई पर्सन भी हो सकता है। सो इट इज़ रॉन्ग टू मेक फन ऑफ पीपल। देयर आर सम पीपल जो मजाक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दीज वर इन द लिस्ट गाइज। Thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned for more such videos. Do subscribe to our YouTube channel for regular informative videos on law, English, GK and other subjects. You can also join our Telegram channel for regular passages in which you ace your preparation with complimentary passages. You can join our social networking sites for regular updates on law. Thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned, stay happy.